بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 11 سے دیکھیے سورہ انعام، چیٹ باکس میں ڈال دیجئے کوئی۔ قل سیرو فی الارض، اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، قل سیرو، تم سیر کرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو تم کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اب ہمارے سامنے کئی انجام، آج تک ہم کئی قوموں کے انجام ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا، اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا۔ ان کے بارے میں ہم کئی قوموں کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ کیسے قوم عاد پر کیسے عذاب آیا، قوم سمود پر کیسے عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، جیسے کہ ہم نے بار بار دیکھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے اوپر کیسے بار بار عذاب آیا، کیا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذابوں میں پکڑا۔ کیا ریزن تھا؟ عاقبۃ المکذبین، کہ یہ لوگ جھٹلاتے تھے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کیوں آیا تھا ان کے اوپر عذاب، کیا وجہ تھی، کیوں انہوں نے کیا کیا تھا ایسا جو ان کو پہلی قوموں کو جیسے نافرمانی کی ان کی سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان نافرمان قوموں کا ہلاک کرنے کا ذکر کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی صفت کا اور رحمت کا بھی ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھیں گے ہم کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جھٹلاتے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ ان کو عذاب دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود بھی کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے بعد، اتنی رحمتوں کے بعد، اتنے انعامات کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا انجام ہوا وہ ہمارے سامنے۔ کئی ایسی بستیاں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ آج تک ایز اٹ از رکھی ہوئی، کہ اگر آپ دیکھیں کہ مدین کی بستی میں اگر آپ چلے جائیں، یا پھر فرعون کو ہی لے لیجئے کہ ایک اس کی جو مثال، عبرتناک مثال جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قائم کر دی ہے، وہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے سامنے، کئی سو سال گزر گئے ان ساری چیزوں کو، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں آج بھی ہمارے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تھا، اور جھٹلانے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ قُل لِّمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ ان سے کتب علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ الَّذِينَ خَسِرُوا، اور جن لوگوں نے خسارہ اٹھایا، جو لوگ ایسے لوگ، اس میں یوم القیامت لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساروں کو جمع کرے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے خود ہی خسارے میں رہنا پسند کیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اب یہاں پر اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ اس لیے نہیں بنائی کہ اس کو بڑا شوق ہے کہ لوگوں کو جلتا ہوا دیکھے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جنتوں میں جائیں، ہمارے لیے اس نے جنتیں بنائی، ہمیں بار بار سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، جنت میں یہ چیزیں ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے نا قرآن میں، بار بار یہ باتیں ہمیں سنائی جاتی ہے کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جنت بنائی اپنے خاص بندوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان دوڑ دوڑ کے شیطان کے قدموں کے پیچھے جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے انسان کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب آ گئی۔ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ ویسے تو دیکھیے کہ ہر چیز، دیکھیے کہ اگر ہم دیکھیں تو انسان کا تربیت ہے، پرورش پانا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار سے گزار کر، مختلف دور سے گزار کر انسان کو پیدا کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک دم بڑی حیرت کی بات دکھتی ہے کہ کیسے ایک خون کا
लोथड़ा होता है, फिर उसको पूरा उसका शक्ल व सूरत बनती है, आँख, नाक, सारी चीज़ें पर्दों में, 7 पर्दों में, अंदर अंदर तह में, अंधेरों में कैसे ये चीज़ें बनाता है अल्लाह ताला। अगर हम सोचे तो हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने कैसे बनाई। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, अल्लाह की रहमत के बगैर नामुमकिन था। एक-एक कदम पर अल्लाह की रहमत शामिल हो, तो तभी इंसान ज़िंदा रह सकता है। अब देखिए कि अगर हमारी ऑक्सीजन ही छीन ली जाए, तो हम क्या सर्वाइव कर पाएँगे? कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हम लगा लेंगे? हम देखते हैं अपने आस-पास कुछ लोग जब बीमार होते हैं, उनको थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है। कमी सिर्फ़ कह रही हूँ, ख़त्म की बात नहीं कर रही हूँ। जिसकी तो ख़त्म हो गई तो फिर उनकी तो बात ही ख़त्म फिर। तो लेकिन जिनकी ऑक्सीजन कम होती है, जो ऑक्सीजन पे आते हैं, वेंटिलेटर पे आते हैं, उनका ही देख लीजिए आप। जो जिनका डायलिसिस हो रहा होता है, उनका देख लीजिए आप, कि कैसे वो लोग परेशान हाल हैं। कि या ये क्या अल्लाह ताला की रहमत नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमको अल्लाह ताला ने एज़ इट इज़ दे दी है, फॉर ग्रांटेड हम इसको ले रहे हैं फिर भी। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना-फिरना, कभी हम इस तरफ नहीं देखते। कभी हमने इस बात पर हम गौर नहीं करते। बल्कि अल्लाह की रहमत है ये सारी चीज़ें, हम तो इस काबिल भी नहीं है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हमको शौहर वालियाँ बनाया, बच्चों वाले बनाया, हमें एक माँ का दर्जा अता किया, एक बहन का दर्जा अदा किया, एक बेटी का दर्जा अदा किया। कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की। क्या हमने बोला था अल्लाह ताला को? नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें अता कर दी। एक ज़िंदगी दी, एक मोमिन घरानों में हमें पैदा कर दिया। अब आप देखिए कि आज आज अगर हम किसी गैर मुस्लिम घरानों में पैदा होते, तो हम अपने आप को क्या बिगाड़ लेते? मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो तो अल्लाह की रहमत थी कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसे घरों में पैदा कर दिया जो हमारे माँ-बाप नेक हैं, सौलेह हैं, हमें भी उन्होंने नेकी की तरफ रास्ते बताए, ऐसे रास्ते हमारे लिए आसान कर दिए कि जब हम खुद ही खुद उस पर चलते गए, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। अब ये देखिए कि जो लोग नॉन मुस्लिम्स घरों में पैदा होके इस्लाम कबूल करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि एक रास्ता उनके लिए हर तरफ से कांटे ही कांटे बिछे हुए होते हैं। कभी आपने किसी की अगर स्टोरी सुनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे उनको सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है और उनको कभी-कभी अपने माँ-बाप को छोड़ना पड़ता है, अपने बहन-भाई को छोड़ना पड़ता है, अपने घर-बार, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, अगर वो दीन पर कायम रहना चाहते हैं तो। हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं आई ना, ये हमारे लिए परेशानियाँ नहीं आई ना। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला का जो हमारे पास हर कदम पर, हर एक-एक कदम पर हम गौर करें, असल में हम गौर नहीं करते, ये बात हमारी है। अब जब से हम कुरान पढ़ने लगे हैं, गौर-व-फ़िक्र करने लगे हैं, कुरान में तदब्बुर करने लगे हैं, तो हमको रियलाइज़ हो रहा है कि वाक़ई अल्लाह ताला कितनी रहमतें हमें दे रहा है, कितनी रहमतों से हमें नवाज़ रहा है, जबकि हमारी तो कोई ऐसी नेकियाँ नहीं है। अगर हम देखें तो चंद मुट्ठी में भर के नेकियाँ हैं हमारे पास। अगर हम देखें काउंट करें तो हमारी नमाज़ें देखिए कैसी टूटी-फूटी हैं, रोज़े हमारे तो बस चल गए तो रख लिए तो बस रमज़ान में रख लिए, उसके अलावा और कोई ऐसी नेकियाँ बड़ी-बड़ी है नहीं, जो हम अल्लाह के सामने पेश कर सकें या अपने आप को ही हम तसल्ली दे सकेंगे, नहीं-नहीं मेरे पास तो ये बड़ी-बड़ी नेकियाँ हैं, मैं बच जाऊँगी दोज़ख से। हम अपने आप को भी ये नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, इंसान का तरबियत, परवरिश पाना अल्लाह की रहमत के बगैर नामुमकिन था। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहा है, "कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द", किसका है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। यानी कि हमारा रहना, हमारा खाना-पीना, बारिश का बरसना, सूरज का, जैसे हमने कल भी पढ़ा, सूरज और चाँद का निकलना, ये सारी चीज़ें कैसी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर सूरज ना निकला तो देखिए आज साइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि सूरज की रोशनी अगर इंसान को नहीं मिल रही है तो उसके लिए विटामिन डी कम हो रहा है, क्या-क्या उसके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या-क्या उसकी बीमारियाँ हो रही हैं। अब सूरज अगर निकलता ही नहीं, महीनों गिनती नहीं निकलता, सालों गिनती नहीं निकलता, तो सोचिए हमारे अंदर क्या-क्या होता। तो ये सारी चीज़ें तो हमने कभी सोची ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला खुद सवाल कर रहे हैं कि आप इनसे पूछिए, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमानों में है, वो किसका है? और आप कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह ही का है। इसने अपने आप पर रहमत को लाज़िम कर लिया है। और ये देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये क्या वजह थी कि इन्होंने कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक किया, हालाँकि अल्लाह ताला तो बड़ा रहमदिल है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, अल्लाह की नाफरमानी की। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको हलाक किया। और अल्लाह ताला अपनी सिफ़त का ज़िक्र कर रहे हैं, अपनी रहमत का ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की कितनी रहमत है हम पर और अल्लाह ताला तो 10 बार हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। ये देखिए ना कि इंसान गुनाह करके अल्लाह ताला के पास आता है,
اللہ ताला ने क्या फरमाया कि अगर इंसान समंदर भर के गुनाह, समंदर के झाग के बराबर गुनाह मेरे पास लेकर आए, तो भी मैं उसको माफ़ कर दूँ। वो सच्चे दिल से अगर माफ़ी माँगे, तो मैं उसको माफ़ कर दूँ। देखिए कोई है हमारे आस-पास, देखिए हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, अहबाब, अगर हम एक छोटी-सी बात बोल दें ना, ज़िंदगी भर बात करना बंद कर देंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए, अल्लाह ताला का करम देखिए कि कैसा है अल्लाह ताला, इतने गुनाह करने के बावजूद भी माफ़ी माँगने के लिए तैयार बैठा है। हर रात अल्लाह ताला हमें पुकार रहा है कि आओ, है कोई मग़फ़िरत माँगने वाला तो मैं उसको बख्श दूँ, मैं उसको माफ़ कर दूँ। देखिए कि कितना गफ़ूरुर रहीम है, हम दिन भर गुनाह कर रहे हैं और रात में अल्लाह ताला फिर हमें बुला रहा है मग़फ़िरत की तरफ। कैसी अल्लाह की रहमत है, तो अल्लाह ताला फ़रमा रहा है कि अल्लाह ताला तो बड़ा अपनी ज़ात में, सिफ़त में, रहमत पर और आख़िरत में, आख़िरत का सबूत भी पेश किया जा रहा है कि अल्लाह ताला कैसा है, लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह, और यकीनन वो तुम सबको जमा करेगा जिसमें जिसके जमा होने में कोई शक नहीं है। कि कुछ लोग ऐसे भी थे ना उस वक़्त कि वो यकीन ही नहीं रखते थे इस बात का कि क़यामत होने वाली है, हम जमा होने वाले हैं, हम दोबारा उठाए जाने वाले हैं। एक गिरोह जिनका ये ख़्याल था कि नहीं, हम मर गए, खप गए, हमारी हड्डियाँ ज़मीन में चली गई, अब हमारा दोबारा उठना नहीं है। तो यहाँ पर उस बात का भी सबूत पेश किया जा रहा है, उस बात की भी गवाही दी जा रही है कि ज़रूर क़यामत का दिन आने वाला है, जिसके वाक़े होने में कोई शक नहीं। अल्लाहु अकबर! अगर ऐसी आयतें हम जब पढ़ते हैं ना, अकेले में बैठ के डर होता है कि अल्लाह कैसा होगा वो दिन, कैसा होगा क़यामत का दिन, कैसे हमको अल्लाह ताला उठाएगा दोबारा, कैसे किस हाल में हम उठेंगे, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। इसके लिए हमें बस तैयारी ही कर सकते हैं, जितनी हो सकती है बस हम तैयारी कर सकते हैं। और किनके बारे में आ रहा है कि वो लोग जिनके जो लोग खुद ही खसारे में रहना चाहते तो वो ईमान ही नहीं लाते। अब उनका ईमान नहीं लाना ही उनका खसारा है कि यानी कि वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी निशानियाँ देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत देख रहे हैं, दिन और रात का आना और जाना, खाना-पीना, हमारी सेहतें, हर चीज़ वो देख रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या है वो ईमान ही नहीं लाते। सबसे अहम चीज़ क्या है? ईमान लाना, और वो मेन वही काम से दूर है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोगों ने खुद ही पसंद किया खसारे में रहना। वलहु मा सकना फिल लैली वन नहार, और रात और दिन में जो कुछ भी है सब इसी का है। सकना यानी कि रहना, साकिन होना, या फिर उसमें रहने वाली जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही का है। वहुव समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला ने देखिए कि कैसे जमीन में कैसे पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सारी चीज़ें बनाई, और सारों को अल्लाह ताला को पता है कि किसको क्या चाहिए, किसको कब क्या चाहिए, किसको क्या पहुँचाना है, किसको किस किस्म का खाना देना है, कौन-सी इंसान क्या खाता है, जानवर क्या खाता है, परिंदे क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स क्या खाते हैं, बड़ी-बड़ी मछलियाँ क्या खाती हैं, अल्लाह ताला को पता है कि इसको किसको क्या कब क्या देना है। तो अल्लाह ताला कि यहाँ पर ये देखिए कि सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बना दी, और अल्लाह ताला को पता है, वो सुनने वाला है और जानने वाला है। जब भी हम कोई दुआ करें ना, तो इस एतबार से, मुत्तमईन होकर करें कि अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। अल्लाह ताला को पता है हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियाँ। ये ना सोचे कि नहीं, नहीं अल्लाह ताला तो मेरी दुआ कबूल ही नहीं करेगा। बल्कि दिल में ये ख़्याल ज़रूर लाएँ, जब भी कोई दुआ करे ना तो ये ख़्याल ज़रूर लाएँ, हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला है, जानने वाला है। आप रियलाइज़ करें, आप ये हमेशा सोचें कि अल्लाह ताला मेरी बात सुन रहा है। ये ना सोचे कि मैं अकेले बैठी हूँ, रो रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बल्कि अल्लाह ताला सुन रहा है, जवाब दे रहा है। बस हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम उसको समझ सकें, या उसको हम इमेजिन कर सकें, या उसको महसूस कर सकें हम कि अल्लाह ताला कैसे हमारी दुआओं को सुन रहा है, कैसे वो हमारी दुआओं को जान रहा है। कभी-कभी आप देखिए कि कभी आप दुआ नहीं कर रहे होते हो, खाली दिल में रो रहे होते हैं, और आपकी दुआ, आपकी बात जो, आप जो परेशानी है आपकी दूर होती है, हो जाती है। तो कभी-कभी इंसान उस तरफ देखता भी नहीं है कि उसने दुआ भी नहीं की थी ना, तो परेशानी दूर हो गई, तो उसने फिर उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसको समझा ही नहीं कि कैसे अल्लाह ताला ने मेरी परेशानियों को दूर किया। अब इंसान जब एक परेशानी के पीछे पड़ता है, तो 10 जो उसके साथ अच्छाइयाँ होती रहती हैं, उसको तो वो गौर ही नहीं करता कि कैसे अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, कि कैसे मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, रह रही हूँ, ज़िंदा हूँ, सेहतमंद हूँ। कभी जाके देखें आप हॉस्पिटल में कि कैसी-कैसी लोग परेशानियों से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कैसे हॉस्पिटल में महीनों गिनती हॉस्पिटल में पड़े हैं, ना उनको कोई देखने वाला है, ना को उनको सँभालने वाला है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ कोमा में हैं, कुछ हार्ट के पेशेंट हैं, कुछ कैंसर के पेशेंट्स हैं, किसके ऑपरेशंस हुए हुए हैं, कोई
कैसी-कैसी बीमारियों से कोई जल गए हैं, कोई एक्सीडेंट्स की वजह से बीमार हैं, कोई एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज़्ड हैं। तो कैसे-कैसे लोग हैं जो हम तो वो सारी चीज़ों में से अलग रखे हुए हैं ना। तो देखिए कि हम अपने घरों में सेहतमंदी के साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अगर छोटी-मोटी कोई बीमारी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसी को हमने इश्यू बना लिया। हम उसी को ले-लेके बैठे हैं कि नहीं-नहीं मेरी तो यही परेशानी है, नहीं-नहीं मेरी तो वही परेशानी है। कोई इंसान शौहर के लिए रो रहा है, शौहर की वजह से रो रहा है, कोई बच्चों की वजह से रो रहा है, कोई एक छोटी-मोटी बीमारी को ले-लेके रो रहा है और अल्लाह को भूले हुए हैं। बल्कि हर हाल में हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था ना, कि अल्लाह तूने ये इन जगह इन ऐसी जगहों पे तो हमें नहीं रख दिया, रख कर छोड़ दिया हमको कि अगर हम कोमा में होते या हम हॉस्पिटलाइज़्ड होते, महीनों गिनती हम वहाँ पड़े सड़ रहे होते। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे बिस्तर पे उनका टॉयलेट हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई उनका केयर करने वाला नहीं। थोड़े दिनों में लोग परेशान हो जाते हैं, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके पास तो कोई अदब नहीं है, कोई लिहाज़ नहीं है, कोई पेरेंट्स की उनके पास वो नहीं है। अक्सर अक्सर औक़ात यही देखा गया है कि उनके पास ये सारी तालीमात है ही नहीं। जब जो कि हमारे पास जो तालीमात है कि बच्चे केयर करते हैं, क्योंकि ये इस्लामी तालीमात का एक हिस्सा है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। अल्लाह ताला जानने वाला है, सुनने वाला है और ये किसके लिए है? अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। कुल अगैर अल्लाह इत्तख़ज़ू वलिया, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और को सरपरस्त बनाओगे? कोई वली बनाओगे? फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ व हुवा युतइमु व ला युतअमु। और कौन है वो? वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और वही तो है जिसे लेकिन के वो क्या सबको खाना खिलाता है, लेकिन किसी से खाना नहीं लेता। देखिए ये एक बड़ी बात है। इलाहा होने का सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर पेश किया जा रहा है कि इलाहा होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है? किसी का मोहताज ना होना। खाना लेना क्या मतलब है? किसी का मोहताज होना। अब हम देखिए कि हम मोहताज हैं, अल्लाह ताला दे तो हम खाएँ, नहीं तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। कोई इंसान को अगर अल्लाह ताला उसकी रोज़ी-रोटी बंद कर दे, तो कोई उसको नहीं खिला सकता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की इलाह होने का अल्लाह ताला सबूत पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के हकीकी इलाह होने का एक मियार तो ये है कि तमाम कायनात को इसी ने पैदा किया। कायनात की तख्लीक में क्योंकि किसी भी दूसरे इलाहा का हिस्सा नहीं है, लिहाज़ा वो इलाह हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर देखिए कि शिर्क की भी इनकार हो रहा है, शिर्क की नफ़ी हो रही है कि कोई इलाह हो ही नहीं सकता इस तरीके से। और दूसरा मेयार क्या बताया जा रहा है कि वो दूसरों को खिलाता है, लेकिन खुद किसी से नहीं खाता। इसके 2 मतलब हैं, एक ये कि जो खाना खिलाता है, जो खाना खाता है वो कभी इलाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो खाने का मोहताज है और अल्लाह खाने का मोहताज नहीं है। यानी कि इलाहा कैसा इलाहा तो वो हो सकता है जो किसी का मोहताज ना हो। और दूसरा मतलब क्या हो सकता है इसका कि दूसरे सब लोग खाने तक के लिए इसके मोहताज हैं। यानी जो मोहताज है इलाहा नहीं हो सकता। फिर वही बात आ गई कि हकीकी इलाहा वही हो सकता है जो किसी का मोहताज ना हो। अब मुशरिकों को देखिए कि इन जिन लोगों ने क्या किया, अपना खुदा बना रखा है। कुछ अपने अपने अलग अलग खुदा बना रखे हैं। इन बंदों को रिस्क देने के बजाय उल्टा इनसे रिस्क लेने के मोहताज हैं। अब देखिए कि ये लोग क्या करते हैं, जा जाकर उनके सामने खाने रखते हैं, दूध रखते हैं, पैसे रखते हैं। तो अब ये देखिए कि ये कैसे इलाह हो सकते हैं? कोई फिरौनी खुदाई के ठाठ जमा ही नहीं सकता, जब तक इसके बंदे से टैक्स और नज़राने ना दे। अब ये फिरौन भी जो था, उसको टैक्स देना पड़ता था, नज़राने देना पड़ता था और वो खुद खुदाई का दावा करता था। ना किसी साहिब कब्र की शान माबूदियत कायम रख सकती है, जब तक इसके अकीदतमंद और इसके परस्तार जो है इसका मकबरा ना तामीर करें, किसी देवता का दरबार खुदावंदी इसी वक्त तक सज ही नहीं सकता जब तक इसके पुजारी का मुजस्सिमा बनाकर किसी आलीशान मंदिर में ना रखें। तो ये है इनको ऐसे ऐसे लोगों को इलाहा बनाया इन्होंने। ये सब क्या है? मसनवी इलाहा हैं। बेचारे खुद अपने बंदों के मोहताज हैं। यानी कि अब ये सारी इनको इतनी इज्जत दें तो बाकी सब लोग उनको फिर इज्जत दे सकते हैं, वरना तो इनको इज्जत देने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर भी इस आयत में भी शिर्क की नफी हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो सबको खिलाता है। अब ये देखिए कि जैसे हमने इस बारे में हमने पढ़ा था कि व्हेल मछली का खाना कितना होता है, टनों से उसका खाना होता है। अल्लाह ताला को पता है कि उसको इतना खाना है। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि अल्लाह ताला मैं तेरी सारी मखलूक का खाना खिलाऊंगा। और उन्होंने कई देगे खाना बनाया और उसमें उन्होंने सबसे पहले एक व्हेल मछली आई और उसने सारा खाना खा लिया। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं तेरी मखलूक को नहीं खिला सकता। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि अल्लाह ताला तो हर एक को खिला सकता है, लेकिन मैं किसी को नहीं खिला सकता।
तो देखिए कि सिर्फ़ एक मछली का खाना, फिर इसी तरीके से बिलों में चूंडियों का खाना, क्या-क्या किस किस्म के परिंदों को ही देख लीजिए आप, कि परिंदे कैसे अपने उड़ते हैं, अपने-अपने जगह से पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो खाने लेकर अपने-अपने बच्चों को तक खाने खिला रहे होते हैं। और अल्लाह ताला को पता है कि कौन से कोने में किसको क्या पहुँचाना है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है। कभी-कभी तो ये होता है कि इंसान मजबूर है, लाचार है, अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला उसको भी बराबर खाना पहुँचाता है। कई एक ऐसी मिसालें हमारे आस-पास मिलती हैं कि जो अल्लाह ताला उनको देखिए कि कैसे अल्लाह ताला उनको खिला रहा है, पिला रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने छोड़ दिया है, माँ-बाप बूढ़े हैं, लेकिन वो उनको भी अल्लाह ताला बराबर पाल रहा है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला तो बड़ा रहमदिल है, बड़ा मेहरबान है, भले ही हम कितने गुनाह करें। अब आप देखिए कि हम दिन भर में से कितने गुनाह कर रहे होते हैं। कभी हमारी नमाज़ छूट जाती है, कभी हम तड़ाक-भड़ाक किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी हर्ट कर देते हैं, कभी कोई गीबत हमारे मुँह से निकल जाती है, कभी कोई झूठ हमारे मुँह से निकल जाता है। लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला ने किसी दिन हमारा खाना छीन लिया हमसे? नहीं ना, अल्लाह ताला तो हमें खिलाता है, पिलाता है, हर नेमतों से नवाज़ता है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि अच्छा ये बंदे ने आज नमाज़ नहीं पढ़ी, आज मैं इसको खाना नहीं दूँगा। हम तो अपने बच्चों के साथ यही करते हैं कि बच्चे ज़रा हमारी बात नहीं सुने तो हम उनकी पसंदीदा चीज़ें छीन लेते हैं कि नहीं आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूँगी, आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस तरीके से हम करते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात देखिए कैसी है कि अल्लाह ताला सबको देता है। और अल्लाह ताला ये कैसे कि अल्लाह ताला की एक ज़ात ऐसी है कि किसी हर एक पर रहम थी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो। अब ये देखिए कि नॉन मुस्लिम्स भी हमारे आस-पास हैं, कैसे अल्लाह ताला उनको नवाज़ रहा है, क्या वजह से नवाज़ रहा है? बस वो अल्लाह के बंदे हैं वो, तो अल्लाह ताला उनको भी खिला रहा है, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। अब ये नहीं है कि वो तो ईमान वाले नहीं हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला उन्हें दे रहा है। तो कई ऐसी मिसालें हैं जो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी पर और अल्लाह ताला की इलाहा होने पर दलील करती है, हमें दलील मिलती है इसकी कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों पर रहमदिल है और कैसे अल्लाह ताला सबको जहाँ जो ज़मीन में है, हर एक को बराबर उसके हिसाब का खाना, उसके पसंद का खाना खिलाता है। आज देखिए कि हमारे घरों में हर किस्म के खाने पड़े हैं। पहले के ज़माने में तो गरीबी होती थी, मुश्किलों से एक एक वक़्त की रोटी मिल जाती थी, लेकिन आज देखिए कि हर तरफ अफ़रा-तफ़री, सैर होकर खाने पड़े हैं। और ये कि उसके और इंसान क्या करता है कि कितना इंसान नाशुक्र है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी देखिए कि हमारे बच्चों का ये हाल है कि ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, बच्चों का खाने का रोना ख़त्म नहीं होता। फिर माँ-बाप बेचारे परेशान हर वक़्त कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, डॉक्टरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये हाल है हमारे पास। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो बड़ा रहमदिल है, सबको खाना खिलाता है, लेकिन किसी से खाता नहीं है। फिर आप फरमा दीजिए, कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलिया, क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को वली बनाओगे, दोस्त बनाओगे, यानी कि इलाहा बना लोगे? फातिर समावाति वल अर्ज़ व हुवा युतइमु व ला युतमु, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मुझे यही हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले अपना सर झुकाऊँ और शिर्क करने वालों में से ना हो जाऊँ। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और शिर्क करने वालों में से ना हो जाऊँ। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह की ज़ात से अल्लाह की नाफ़रमानी होना मुमकिनात ही नहीं है, कि दरअसल ये लोगों को तंबीह के तौर पर ये कहा जा रहा है कि रसूल भी नाफ़रमानी करे, तो क़यामत के दिन इनकी भी बाँस पुरस हो सकती है। फिर दूसरे लोग अपना अंजाम खुद ही सोच लें। यहाँ सबसे पहले रसूल को ही कहा जा रहा है कि तुम सबसे पहले अपना सर झुका दो। अब देखिए कि रसूल तो पहले ही अल्लाह के फर्माबरदारी में है, लेकिन ये देखिए कि हमको बाद में कहा जा रहा है, लेकिन पहले रसूल को कहा जा रहा है कि अगर रसूल भी कोई गलती करें तो अल्लाह ताला उनकी भी पकड़ करता। लेकिन ये कि वो तो गुनाहों से पाक हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला उनको भी कह रहा है कि तुम सबसे पहले नाफरमानी मत करो, तुम पहले सर झुकाने वालों में से हो जाओ, तुम पहले नेक हो जाओ, तो फिर अल्लाह ताला तुम ये ना हो कि तुम शक करने वालों में से हो जाओ। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, और बेशक अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ, तो मैं बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। देखिए कौन कह रहा है ये? नबी कह रहे हैं। हम आम इंसान नहीं कह रहा, बल्कि नबी ये कह रहे हैं कि देखिए अगर मैं भी गुनाह करूँ, कोई मैं नाफरमानी करूँ अपने रब की, तो मैं भी उस दिन के अज़ाब से डरता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि नबी डर रहे हैं और हम हैं कि डंके की चोट पे गुनाह किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे गौर करने की है, समझने की है कि हम कितना डरते हैं अल्लाह से।
कितनी नाफरमानियां करते हैं, और हम आखिरी दिन के अजाब से डरते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि अल्लाह ताला माफ कर देगा, बल्कि ये ख्याल भी नहीं आता कभी गुनाह करते वक्त कि अल्लाह ताला माफ करेगा या नहीं करेगा। तो इंसान को हर वक्त ये सोचना चाहिए कि नबी को क्या बात कही जा रही है यहाँ पर। नबी को कहा जा रहा है कि अगर तुम भी ये करोगे तो तुम, नबी, उनको भी रुकने के लिए कहा जा रहा है, उनको सर झुकाने के लिए कहा जा रहा है, और नबी खुद डर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं नाफरमानी करूंगा तो अल्लाह ताला से डरता हूं मैं, और इस दिन से जो बचा लिया गया, मैं यस्रिफ अनहु यौमइज़िन फक़द रहिमा, इस दिन जो शख्स अजाब से बचा लिया गया, इस पर अल्लाह ताला का रहम हो गया, इस पर अल्लाह ताला का बड़ा रहम और करम हो गया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही सच्ची कामयाबी है। यानी कि इंसान को सच्ची कामयाबी हमेशा कौन सी लगती है? दुनिया में इंसान क्या सोचता है कि अच्छा घर बन गया, अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने लग गए, अच्छी जॉब्स मिल गई, सब मुतमईन है, कामयाब है। हमारी नजरों में कामयाबी यही है ना। लेकिन यहाँ पर सच्ची कामयाबी क्या है? जो शख्स अज़ाब से बच गया और इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम व करम किया। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत की हमेशा भीख माँगा करें। अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह हम भीख माँगते हैं, अल्लाह भीख में तू हमको अपनी रहमत दे दे। क्योंकि अल्लाह की रहमत के सिवा कोई जन्नत में नहीं जा सकता। हमारे पास नेकियाँ चाहे कितनी भी हो, हम अल्लाह की इबादत, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी हम अदा नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर एक बंदा दिन और रात खाना खाए बगैर, पानी पिए बगैर, दिन रात अगर वो नेकियां करता रहे, इबादतें करता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे, तो वो एक आंख का भी शुक्र नहीं अदा कर पाया सारी जिंदगी में। तो सोचिए कि हम कैसे अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी अदा कर सकते हैं, कैसे हम अल्लाह की जो नेमत है उसका हम कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं, कि जब तक ये तो इतनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, हम तो हम उसको शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। लेकिन अगर अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसको चाहता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाता है, माफ कर देता है, और यही सच्ची कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भी हम पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर, अल्लाह यहाँ पर जितनी बहनें बैठी हैं, अल्लाह ताला, अल्लाह आपको राजी करने के लिए बैठी हैं, अल्लाह ताला इन पर भी अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा, और अल्लाह ताला हमको भी जन्नत में दाखिल फरमा अपनी रहमत से। कभी भी इस तरीके से दुआ किया करें कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह अपनी रहमत, अल्लाह की रहमत के बगैर हम जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। हमारे पास कोई ऐसी बड़े-बड़े काम नहीं है कि जिसको हम बता के जन्नत में दाखिल हो सकें। ये देखिए ना कि इतने बड़े-बड़े पैगंबर गुज़रे हैं, और उनके उनसे छोटे-छोटे गुनाह भी हुए हैं, तो वो क्या है? रो रहे हैं, डर रहे हैं क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला से हमें रहमत की उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। और हम तो बड़े-बड़े गुनाह करते रहते हैं, दिन भर हमसे कोई ना कोई गुनाह सरज़द होते रहते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं डरते अल्लाह से। ना हम अल्लाह की रहमत की भीख माँगते हैं कभी कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, अल्लाह तू अपनी रहमत से हमें ढाँप ले। अल्लाह की रहमत के हमेशा अल्लाह की रहमत हमें माँगना चाहिए कि अल्लाह अपनी ख़ास रहमतों से हमें ढाँक ले। और यही सच्ची कामयाबी है। वइन यमसस्का बिदुर्रिन फला काशिफ लहू, और अगर अल्लाह ताला तुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो इस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता। इल्ला हुआ, मगर सिर्फ वही। हुआ से क्या मुराद है? अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला उसको हटाना चाहे कोई तकलीफ को, तो सिर्फ अल्लाह ताला ही हटा सकता है। अगर कोई उसको तकलीफ देना चाहे तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, अल्लाह ताला अगर चाहे तो उसको हटा सकता। व इन यमसस्का बिखैर, और अगर अल्लाह ताला कोई खैर पहुंचाना चाहे, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो हर चीज पर खूब कादिर है। यानी कि देखिए कि अल्लाह ताला कैसा है कि अपने बंदों पर रहम करने वाला है, और अगर कोई तकलीफ देना चाहे, और अल्लाह ताला अगर तकलीफ देना चाहे, तो दुनिया का कोई भी, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कोशिश, कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसको नहीं रोक सकती। देखिए कि हम देखते हैं अपने आस-पास कि कोई बीमार है, कोई कितने बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं, उनको ही हार्ट हार्ट की बीमारी है। हार्ट अटैक आया, उनको चले गए। क्या उन्होंने कर लिया अपने आप को? अपने आप को भी नहीं बचा सके। वो कई पेशेंट्स को उन्होंने बचाया, लेकिन जब उनके ऊपर आई तो वो अपने आप को भी नहीं बचा सकते। कई ऐसी एक मिसालें हमारे आस-पास मिलती हैं कि जो अल्लाह ताला के, अगर अल्लाह ताला ने कोई परेशानी भेज दी तो वो इंसान उसको नहीं हटा सकता। चाहे उसके पास दौलत है, धन है, दौलत है, हर चीज़ है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको नहीं हटा सकता। ये सारी चीज़ें के बता दी गई कि अल्लाह ताला का इख्तियार है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व इन यमसस्का बिखैर, और जो कोई खैर अल्लाह ताला की तरफ से खैर अगर मिल रहा है तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। ये भी अल्लाह ताला की एक
रहमत है, कि खैर, कोई खैर से मुराद कोई भी भलाई हो सकती है, कोई भी अच्छाई हो सकती है, भलाइयाँ हो सकती है। कि देखिए कि अल्लाह ताला जब भलाई का इरादा करता है इंसान के साथ, तो चाहे उसको आस-पास वाले कितना भी रोकना चाहे, उसको भलाई पहुँच कर ही रहती है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक इस बात पर अल्लाह ताला क़ादिर है कि एक तो वो किसी के कोई इसकी दी हुई तकलीफ को नहीं हटा सकता, और वो इस बात पर पूरा इख्तियार रखता है, अपने बंदों पर पूरा इख्तियार रखता है कि वो वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, वो अपने बंदों पर हर चीज़ पर वो पूरा इख्तियार रखता है। वहुवल हकीमुल ख़बीर, और अल्लाह ताला इस बात की ये कि दाना भी है, खबर रखने वाला भी है, हर चीज़ की खबर हिकमत वाला भी है, और खबीर भी है, खबर रखने वाला भी है। यानी कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो अपने बंदों को जो चाहे अता करे, चाहे उसको भलाई अता करे, चाहे उसको खैर अता करे, चाहे उसको तकलीफों में मुब्तला करे। और अल्लाह ताला का हमको नहीं पता कि दोनों के से इरादा क्या भलाई का इरादा है। कभी कभी तकलीफें डालकर भी इंसान को अल्लाह ताला जन्नत के आला दर्जात पर पहुंचा देता है, और हम ये सोचते हैं कि देखो हाय, उसके साथ तो देखो कितनी परेशानी है, ये अल्लाह ताला ने उसको कैसे परेशानियों में डाल दिया, वो उसका तो बच्चा छिन गया, उसके तो बच्चे की डेथ हो गई, वो उसके तो खाने को नहीं है, कल अल्लाह ताला ने उसके साथ क्यों ऐसा किया होगा। हम ऐसी बातें करते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला को पता है किसको तकलीफ देना है, किसको अच्छाई देना है, किसको खैर देना है, क्यों देना है। उसके पीछे अल्लाह ताला की राज हैं, हम जो नहीं जान सकते, वो गैब की खबरें हैं जो हम नहीं जान सकते। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला को पता है, बंदों पर पूरा इख्तियार है। वो खबर रखता है कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना। हम अब अल्लाह ताला को तो हम बताएँगे नहीं कि हाय अल्लाह ताला ने वहाँ पर इतने लोग मर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि देखो बेचारे गज़ा के लोग कितने लोग मर रहे हैं, अल्लाह ताला रहम ही नहीं करता इनके ऊपर। कैसे मतलब जो जाहिल किस्म के लोग हैं अलग ऐसी तरीके की बातें करते हैं कि अल्लाह ताला उन पर रहम नहीं करता, मासूम बच्चे मर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला को रहम नहीं आता? क्या नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को रहम नहीं है उनके ऊपर? हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला का इसमें क्या इरादा है, क्या मकसद है अल्लाह ताला का। हर चीज़ में अल्लाह ताला के कोई न कोई मकसद होता है, कोई न कोई इरादा होता है। कभी दूसरों को दिखाने के लिए सबक होता है, कभी उनके लिए एक आज़माइश होती है। हमें नहीं पता कि कौन उसकी वज़ह से आज़माइश में पड़ रहा है। हो सकता है कि देखने वाले उसमें से आज़माइश में पड़ रहे हैं। जो लोग उनके ऊपर तकलीफ़ें होते हुए देख रहे हैं और खामोश है, वो उसमें आज़माइश में पड़े हुए हैं। उनका एक इम्तिहान हो रहा है, या वो जिनके ऊपर तकलीफ़ें आ रही हैं, उनका इम्तिहान हो रहा है, हमें नहीं पता। कुल अय्यु शैउन अकबरु शहादा, और ये आप इनसे इनके आप कहिए अल्लाह की मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह है। कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ही भी शहीदुम बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान कौन गवाह है? अल्लाह ताला गवाह है। व उहिया इलैया, और उसी ने क्या किया है? व उहिया, और वही की गई है इलैया मेरी तरफ, हाज़ल कुरआन, ये कुरान। कौन कह रहा है ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों अल्लाह ताला ने ये गवाही दी कि मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या गवाही है? कह दीजिए अल्लाह ही गवाह है मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। और क्या वही की गई है मेरे तरफ? ये कुरान। क्यों वही की गई? लिउनज़िरकुम, ताकि मैं तुम्हें डराऊं, बिही, इसके साथ। वमन बलगा, और जिसको ये पहुंचे, अइन्नकुम लतशहदून, क्या तुम शहादत देते हो? अन्नमा अल्लाहि, कि बेशक अल्लाह के साथ, आलिहतन, माबूद हैं, उखरा, दूसरे भी। यानी कि अब ये फिर से शिर्क वालों को कहा जा रहा है कि उनको उनको भी ये कहा जा रहा है कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और कोई गवाह है, और कोई माबूद है? कुल ला अशहदु, कह दीजिए नहीं मैं शहादत देता। कुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, कह दीजिए कि सिर्फ वो एक ही इलाहा है। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और मैं इससे बरी हूँ, मैं इससे बेजार हूँ जो तुम शरीक ठहराते हो। तो यहाँ पर भी देखिए कि अल्लाह की रिसालत का क़यामत तक के ये बात बता दी गई कि कौन है ये गवाह? ये गवाह अल्लाह की शहादत सबसे बढ़कर गवाही है। यहाँ शहादत का बताया जा रहा है कि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद गवाह है। अब ये उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल होने पर उनको शक करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। तो यहाँ पर इस लिहाज से ये आंखों देखी शहादत, और फिर कायनात की एक एक चीज अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सारी चीजें बताकर कह रहे हैं कि अल्लाह की गवाही सबसे बड़ी है। और अल्लाह की गवाही में क्या क्या चीज शामिल है? वह उहिया इलैया अज़ल कुरान, कि मेरी तरफ कुरान वही की गई है। तो एक कुरान भी उतारा गया, ये भी एक शहादत है, ये भी एक गवाही है। और किस लिए उतारा गया? ताकि मैं तुम्हें डराऊं।
اس کے باوجود کیا تم شہادت دیتے ہو؟ اس کے بعد مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اس کے ساتھ کتاب بھیجی، اس کے باوجود بھی کیا تم یہ بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے، کوئی دوسرے معبود ہیں؟ کہہ دیجئے کہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی ہے، ایک الہ، الہ واحد، کہ اللہ ہی ایک الہ ہے، اور یقیناً میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی کہ جو لوگوں کو انہوں نے اولاد بنا لیے، بیٹے بنا لیے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول اس سے بری الذمہ ہے، یہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا اور مجھے رسول بنایا ہے، اور قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، سب پہلے ہی ڈرا دوں، پہلے ہی الرٹ کر دوں، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن اب یہ ہے کہ پڑھے تو کوئی بات ہے، سمجھے تو کوئی بات ہے، پڑھتے تو ہیں ہم لیکن سمجھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں یہ لکھا ہے، اچھا یہ نہیں کہنا تھا، اچھا یہ ایسے کرنا تھا، یہ ڈونٹس ہیں، یہ ڈوز ہیں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہم یہ نہیں ہم بات کر سکتے، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، اور دیکھیے کہ ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین قرآن ہمارے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں آج تک ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے رہے جو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن اسی لیے نازل کیا کہ تم کو وقت سے پہلے ہی ڈرا دے، وقت سے پہلے ہی الرٹ کر دے، کہ دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ ایگزامس ہوتے ہیں تو ایگزام سے پہلے ہی گائیڈز لا لیتے ہیں بچے، ٹیکسٹ بک لا لیتے ہیں، نوٹس لا لیتے ہیں تاکہ ایگزام کی تیاری کر لیں۔ تو پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب بھیج دی اور بتا دیا کہ تم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کے غصے سے کیسے بچنا ہے، کہ اللہ کی رحمت تک کیسے پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہی تم کو اس کی اطلاع دے دی، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھی ڈراؤں، اللہ نبی کو یہ بتایا اس لیے دیا کہ لوگوں کو ڈرائیں، جن تک یہ آواز پہنچے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی ملتی ہے، اور تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، جو بھی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، نان مسلمس ہیں، ہر ایک کے سامنے ہم نے کچھ نہ کچھ بات تو پیش کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا ان کو ہم کیسے بولیں، یہ تھوڑی سنیں گے ہماری بات، بلکہ وہ سنے نہ سنے وہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا۔ یہ کام ہے کہ ہم کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے دوست ہیں، کوئی ہمارے پڑوسی ہیں، کوئی نان مسلمس ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی بات ان کو دین کی طرف لے کر آ جائے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ان کو ان تک پہنچا سکتی ہے، اللہ تک لا سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تم کو یہ بات بتائی گئی تھی، یہ تم کو معلوم تھی۔ کبھی کبھی تو لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی کوئی نیکی کی بات نہیں بولتے، یہ سوچ کر کہ نہیں وہ پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہاں بڑی دین والی ہو گئی۔ تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ہم کو جتنی بات پتا ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ اب بہت سارے لوگ اس کلاس میں نہیں ہیں، ہمارے کئی رشتہ دار ایسے ہیں جو اس کلاس میں نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں کہ کیسے ہمارے دل دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے پردے کھل رہے ہیں، دلوں کے گند صاف ہو رہی ہے، ایک ایک چیز ہمیں پتا چل رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں پتا چل رہا ہے، عذابوں کے بارے میں پتا چل رہا ہے، کیسے الہ کے بارے میں پتا چل رہا ہے، شرک کے بارے میں پتا چل رہا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کلاس میں نہیں بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہے، تو ان کو کیسے یہ بات کی پتہ چلے گا؟ تو یہاں پر ان کو بھی ہمارا کیا کام ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ان تک بھی پہنچائے تاکہ ان کو بھی یہ ساری بات معلوم ہو، اور ہم اللہ کے پاس جواب دہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ جب تم کو پتا تھا تم نے کیوں نہیں بتایا؟ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے مطلب کسے؟ ہو کی دلیل کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہو کو سرکل کر کے لکھ دیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کما یعرفونہ، جیسے وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ تو یعنی کہ نبی کے آنے کی جو بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی تھی، تو وہ سارا کچھ ان کو پتا تھا کہ یہ نبی ایسا ہوگا، اس کی کوالٹیز یہ ہوگی، اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر انکار کر دیا۔
کہ یہاں پر عرب میں یہ الفاظ بطور محاورہ بولے جاتے ہیں، کہ یعنی کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کے متعلق پکا یقین ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو۔ تو یعنی کہ کوئی بھی انسان بھری محفل میں اپنے بیٹے کو دیکھ لے تو وہ پہچان لے نا۔ اب اس کو یہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا ارے پتہ نہیں اس میں سے میرا بیٹا کون ہے۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہوتی کہ بھری محفل ہے، مجلس ہے، یا پھر کوئی جلوس ہے، یا کوئی باہر کوئی میلے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، کوئی باپ اپنے بچے کو دور سے دیکھ کے پہچان لے کہ ارے وہ میرا بیٹا کھڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ لوگ ایسے پہچانتے تھے اس نبی کو جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں بھی اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتاب میں ان کی جو مذکور نشانیاں تھی اس کے مطابق نبی آخر الزماں کو پہچان چکے تھے، اور جس کی بشارت انہیں دے دی گئی تھی، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ جو دوسری قوم ہے مطلب کیا ریزن تھا اس کا کہ ان کی اپنی سرداریاں نہ چلی جائیں، ان کی گدیاں نہ چلی جائیں، اور حسد تھا، بغض تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ نبی آ ہی نہیں سکتا، بنی اسرائیل میں ہی نبی نے آنا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب تک سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے تو یہ نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو جو کچھ بھی ہو بہرحال اپنا ہی یہ نقصان کر رہے ہیں، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ تو یہ لوگ یہ سوچ کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، نبی کو نہیں مان کر یا نبی کو نہیں پہچان کر، حالانکہ پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کیا وجہ تھی؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے تھے نا وہ۔ ایمان لانا ہی ایک چیز ہوتی تھی کہ اگر وہ اپنے آپ کو خسارے میں سے نکال سکتے تھے اور اللہ کی رحمت کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتے تھے۔ یہاں پر آیت نمبر 20 تک بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔